Hello, my dear students. Welcome to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. Today, we are going to study more about the solar energy, then about the wind energy, and then the hydro energy. Alright, so we will be study these three types of energy today itself, and the remaining one in the next lecture. ऑलराइट सो बेसिकली हम लोगों ने अभी तक सोलर एनर्जी के बारे में क्या क्या डिस्कस कर लिया है कि सोलर एनर्जी एक्चुअली होती क्या है. सन की जो रेडिएशंस यानी सन से आने वाली जिस एनर्जी जो होती है उसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं, लेकिन उसमें भी तीन पार्ट्स होते हैं जो हमने डिस्कस किए थे, राइट. एंड देन वी लुक अप टू सम लिमिटेशन, सम एडवांटेजेस, राइट, एंड वी लुक्ड अप टू द calorific value of the fuel too, right. In this lecture we are going to study all the three types of energy, that is the solar, all right, wind and hydro. ठीक है, इनके बारे में, इनके डीमेरिट्स, इनके मेरिट्स, कौन से डिवाइसेस होते हैं, किस तरीके से हम इनकी एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं और कितनी ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ हार्नेस कर सकते हैं, ये हम चीज़ें आज देखने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड, ऑलराइट. एंड ये जो चीज़ें हम लोग स्टडी कर रहे हैं डेफिनेटली आपको स्कूल एग्जामिनेशन के साथ साथ ओलंपियाड्स में भी आपको हेल्प करने वाली है. सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू स्टडी इट थ्रू आउट द होल लेक्चर, ऑलराइट. एंड you should definitely share these videos and lectures to everybody. All right, if you want DPP and study material, you can access them through our Telegram channel. You have to write TTB010 in the search box of the Telegram app. If you do so, drop down list में हमारे channel appear हो जाएगा for the 10th class. You can join that channel and you can access all the DPPs and study material along with the notifications of the video classes. Alright, now see, this is the team which is going to help you a lot as we are putting so much of our efforts so that we can provide you the content by which you can crack the examination, either these school examination or the Olympiad one. So basically what we are going to give you is the quality education you need or you deserve. Definite सी बात है, right? Quality education पे सभी का हक है and that is what we are providing and free for everybody. That means you can watch these video lectures. If you share these video lectures to your friends, they can also watch it, right? So you do not have to pay anything to watch these video lectures. This is the free education you can get and that is from Kota only, right? And that is the main important thing too. In accordance to these lectures, basically we have also prepared some packages of for you. So if you are interested in the year-long process and if you want to get some consistent studying, right, if you are not one of those hard-working kids who does the consistent work, then you can join us because we are making sure that you become consistent in your study. That is the main thing for our packages. These two packages are available on our website, that is www.talkingtextbooks.in. So when you go on our website, you are going to get the two type of packages over there. This is the full one and this is the test series. So basically full package जो है इसके अंदर सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, the minimum and the important things. For example study material, तो उसके लिए आपको इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा, which material you should use, ठीक है. Second thing, you are going to get the recorded and the live classes. So to understand that material in a very much easy manner, we are going to provide you the classes. Then comes the homework submission feature. You are going to study from the study material. You are going to watch the video lectures and then you are going to do the homework and you will be submitting that to us, ठीक है. उसके बाद that would be the bi-weekly quizzes. Every week आपके 2 quizzes होने वाले हैं. You have to attempt that so that you can get एक्सेस टू दी नॉलेज कि भाई किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ऑलराइट. एंड उससे आपको हल्का फुल्का ऐसा रहेगा कि टेस्टिंग हो रही है, राइट. आपको ऐसा नहीं लगेगा दैट आप बस पढ़ रहे हैं एंड देन 3 हफ्तों बाद एग्जाम आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है. सो दैट इज द बाई वीकली क्विजेज. एवरी वीक यू आर गोइंग टू बी टेस्टेड ट्वाइस एंड देन कम्स द पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स to tell you the we can say the format of the final examination, like the number of questions you need to attempt in how much of time. So you should be accurate and you should be like having a high efficiency, right. आपका speed, आपका accuracy ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है during the examination, right. and वो सब चीज़ें आपको क्लियर होने वाली हैं पीरियोडिक टेस्ट पेपर से. So basically all in one package है ये हमारा full package. You can join that package and if you are interested in only the testing part, then you can join the test series, right. उसके अंदर आपको मिलने वाला है periodic test papers, recorded and live classes, bi-weekly quizzes, alright. So that is the main important thing. Now if you want to join them, these two packages, what you need to do is you need to click on buy now and then you need to use my code to get a 30% discount, that is
CY Live. So if you write CY Live, then you will be getting the 30% discount. And if you want to know more about these packages, then you can call us on the number 919549041111. Alright, so it would be good if you call us, and all your queries will be resolved over there. So make sure you do not have any query, right? We should get resolved it very, very, very often, right? Now see, first of all, we'll be promising ourselves. So what you need to do is you need to promise yourself, क्योंकि हम खुद से किया हुआ वादा बहुत मुश्किल से तोड़ पाते हैं. हालांकि ये बहुत ईजी होता है, बट स्टिल फिर क्या लगता है कि भाई खुद से किया हुआ वादा भी नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरों का कैसे करेंगे, राइट? दैट इज द मेन थिंग. सो प्रॉमिस योरसेल्फ दैट यू विल बी वॉचिंग द होल लेक्चर, यू विल बी मेकिंग प्रॉपर नोट्स एंड यू विल बी रिवाइजिंग ऑन अ डेली बेसिस. रिवीजन बहुत ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि आगे की जो हम लोग पढ़ रहे हैं या फिर आगे हम पढ़ने वाले हैं, उनके चक्कर में हमें पीछे की पढ़ी हुई चीज़ें नहीं भूलनी है, उन्हें दिमाग में रखना है, राइट? तभी तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ पाएंगे. सो दैट restoration of the information requires a revision. That is why you need to revise more often, right? ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप डेली एक ही चीज़ को रिवाइज करें, but it should be like a repeated one, or it should be like having some spaced repetition over there. So अगर आप रोज़ रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं एक टॉपिक का, तो टॉपिक वाइज आप डिसाइड कर लीजिए स्पेस्ड रिपीटिशन. फॉर एग्जाम्पल आज जो टॉपिक रिवाइज करने वाले हैं, उसी टॉपिक को फिर आप एक दिन छोड़ के अगले दिन उस दिन रिवाइज करेंगे, एंड देन आफ्टर नेक्स्ट वीक, राइट? तो ऐसे करते 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 यू कैन डू ऑल द रिविजन. ठीक है, सारे टॉपिक्स का रिविजन कर पाएंगे ऐसे स्पेस्ड रिपीटिशन के साथ साथ, एंड इट विल स्टिक टू इन योर माइंड. ठीक है, दैट इज द गुड थिंग. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So this is our third lecture. We are going to study the solar, wind and hydro energy. You can see all these three energy inside this photo. This is the solar energy we are getting. This is the hydro energy we are getting, right? And this is the wind energy. Alright, so that is what we are going to study today. ठीक है? सो देखिए, हम लोग सोलर की बात करते हैं. तो अभी तक हमने सोलर एनर्जी के लिए समझा व्हाट इज़ दैट. देन हमने ये समझा कि भाई ये जो सनलाइट है जब वो फॉल होती है तो उसके अंदर भी कितने टाइप्स ऑफ एनर्जी आपको मिलती है, मतलब अर्थ तक कितनी यू कैन से, एक तो अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना पहुंचता है, हम कितना उनको हार्नेस कर पाते हैं, एंड मतलब अर्थ तक कितना पहुंचता है, एंड देन एटमॉस्फेयर से होते होते हमारी सरफेस ऑफ द अर्थ तक कितना पहुंचता है, राइट? ये हमने देखा था. एंड देन व्हाट वी हैव सीन दिस कि भाई ये जो सोलर एनर्जी होती है उसके कुछ मेरिट्स भी हैं, उसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं. ठीक है, इनको भी हम लोग देखेंगे. बट बिफोर दैट लेट्स कंटिन्यू कि भाई ये जो सोलर एनर्जी होती है उसको हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही मेथड से हार्नेस कर सकते हैं. लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट डायरेक्टली. अगर हम डायरेक्टली की बात करें तो क्या हो रहा है कि भाई सन की रोशनी आ रही है, सन की रेज आ रही हैं, एंड वी आर यूजिंग दैट विदाउट कन्वर्टिंग इट. तो दैट इज द डायरेक्ट यूज. ठीक है, और अ लिटिल बिट ऑफ कन्वर्जन कैन बी देयर ओवर. ठीक है, तो देखो जब हम डायरेक्ट की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो सोलर कुकर्स हैं, दीज आर द सोलर कुकर्स. ठीक है, तो ये जो सोलर कुकर है डायरेक्ट एनर्जी यूज़ करता है. कैसे? सनलाइट इसके ऊपर फॉल होती है, इस मिरर के ऊपर फॉल होती है, रिफ्लेक्ट होके वो इस ग्लास के थ्रू अंदर चल जाती है, राइट? एंड अंदर पहुंचकर बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ये बाहर एनर्जी, हीट एनर्जी नहीं आ पाती है. सो बेसिकली अंदर जो भी एनर्जी है, अब गर्म इन्वायरमेंट हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट अंदर रखे जो कंटेनर्स होते हैं उनके अंदर जो भी खाना होता है वो कुक हो जाता है, बिकॉज उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है. सो दिस इज द डायरेक्ट मैथड. ठीक है, सो डायरेक्टली अगर आप सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करना चाहते हैं तो इट कैन बी डन बाय कलेक्टिंग द हीट रेडिएशन ऑन रिफ्लेक्टिंग दीज बाय plain mirrors onto black boxes containing uncooked food and for heating water in the solar heaters. So basically जो uncooked food है, ठीक है, उसको हमने रख दिया है, लाइट रिफ्लेक्ट होकर उस uncooked food पर जाती है, right? And you can see the inner sides of this box are painted black because black is a good absorber and radiator of the heat. That is why it is painted black inside. So if we do that, we are harnessing the direct energy. And let's talk about the indirect energy. इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, जस्ट लाइक जैसे बायोमास ऑफ द प्लांट्स में होता है. ठीक है, तो उसके अंदर हम उनको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. और ये देख सकते हैं हीट एनर्जी ऑफ सन कैन बी यूटिलाइज्ड इन सी वेव्स. क्या होता है सी वेव्स के अंदर, कैसे यूटिलाइज की जा सकती है? आप ये बात जानते हैं कि जो ओशन होता है उसकी ऊपर की सरफेस धूप की वजह से यानी सन की एनर्जी की वजह से काफ़ी गर्म हो जाती है.
नीचे की जब जो सरफेसेस है जहाँ तक हीट एनर्जी नहीं पहुँच रही, जहाँ तक सन की एनर्जी नहीं पहुँच रही है, वहाँ पे काफ़ी कम टेम्परेचर रहता है. सो बिकॉज ऑफ दैट टेम्परेचर डिफरेंस वी आर गोइंग टू गेट सम अनदर एनर्जी, ठीक है, जिसे हम ओशियन थर्मल एनर्जी कहते हैं. ठीक है, सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर देयर. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई हम कब डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, कब हम इनडायरेक्टली यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो ये क्या हो गया है, डायरेक्टली यूज हो गया है और इनडायरेक्ट यूज हो गया है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम अदर थिंग्स, जैसे कि डिवाइसेस. जो सोलर के डिवाइसेस हैं, काफ़ी सारे डिवाइसेस हैं, बट फर्स्ट एंड सिंपल डिवाइस इज दिस सोलर कुकर ओवर हियर. ठीक है, देखो सोलर कुकर में स्पेसिफिकली आपको कुछ चीज़ें चाहिए, है ना, और ये जो डिवाइसेस हैं, इन डिवाइसेस को हम लोग बोल सकते हैं सोलर हीटिंग डिवाइसेस. वाई सो? बिकॉज यहाँ पर हम सन की एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं अपने काम करने के लिए. ठीक है, इट कैन बी लाइक कन्वर्टिंग दैट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, और इट कैन बी लाइक कुकिंग आवर फूड. ठीक है, हीटिंग आवर वाटर. सो these types of energy is actually we can say get from these devices, right? So ये solar devices का जो हम बोल रहे हैं mainly, वो सिर्फ इसी बात के लिए बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम directly solar energy को use कर रहे हैं. So यहाँ पे देखो solar heating devices are the devices which can collect and store heat obtained from the solar energy. ठीक है, वो उसको कलेक्ट कर सकता है और स्टोर कर सकता है, राइट. यहाँ पर सोलर कुकर में सेम यही काम होता है. सो इफ वी आर स्टोरिंग एंड यूजिंग दैट एनर्जी, दैट मीन्स वो जो डिवाइस है वो सोलर हीट एनर्जी डिवाइस है. ठीक है, एंड वो हीटिंग और कुकिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है. इनको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, मेनली इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि मैक्सिमम सोलर एनर्जी को यूटिलाइज कर सके. अब ये यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सकता है और क्या नेसेसरी चीज़ें हैं जिनके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि हम बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब बहुत ही मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम सोलर एनर्जी का कर सके, ये हमें देखना है. सो हाउ यू कैन डू दैट और हाउ वी कैन अचीव द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन एज फर्स्ट वन, कंसंट्रेशन ऑफ सोलर एनर्जी बाय यूजिंग रिफ्लेक्टर्स. हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि जितनी भी सोलर एनर्जी अवेलेबल है वो सब की सब उस जगह पे जाए जहां पर हम यूज करना चाहते हैं. लेट इट बी दिस सोलर कुकर, दिस इज ऑल्सो सोलर कुकर. ठीक है, बट इट इज हैविंग अ कनकेव रिफ्लेक्टर. ठीक है, जैसे सोलर मेन जो यू कैन से सिंपल सोलर कुकर जो होता है उसमें प्लेन मिरर होता है. ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, डायरेक्ट सनरेज तो जा ही रही हैं, बट कुछ सनरेज सोलर वो जो हमारा प्लेन मिरर है उससे टकरा के भी ग्लास के अंदर जा रही हैं. ठीक है, सो वहाँ पे क्या हो रहा है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी वहाँ फॉल कर रही है. ठीक है, हमारा काम हो रहा है, राइट. उसके अलावा भी आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, सोलर एनर्जी को कंसंट्रेट कर सकते हैं. रिमेंबर, हम लोगों ने लाइट चैप्टर में कनकेव मिरर के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने ये पढ़ा था कि जब इन्फिनिटी से लाइट रेज आती हैं तो सब फोकस पे क्या हो जाती है, कंसंट्रेट हो जाती हैं आफ्टर रिफ्लेक्टिंग. सिमिलर प्रोसेस हमने यहाँ पे किया और वही चीज़ को यूज़ किया है. सो वी मेड अ कनकेव रिफ्लेक्टर ओवर हेयर. अब जितना भी सन रेज इस सरफेस के, इस कनकेव सरफेस पे जाएंगी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन सारी की सारी इस बर्तन पे, ये जो यूटेंसिल यहाँ रखा हुआ है, वहाँ जाके कंसंट्रेट हो जाएंगी. वाई सो? बिकॉज यहाँ पर जो है फोकस पे रखा गया है. सारे लाइट रेज अगर फोकस पे आ रही हैं तो इसका मतलब उस जगह पे अमाउंट ऑफ हीट इज़ वेरी वेरी मच ग्रेटर, राइट. एंड सिंपल सोलर कुकर के मुकाबले हाई टेम्परेचर अचीव कर सकते हैं यूजिंग दिस टाइप ऑफ कनकेव रिफ्लेक्टर्स. ठीक है, सो पहला रिक्वायरमेंट क्या है कि हम सोलर एनर्जी को कंसंट्रेट करें. जितनी भी सोलर एनर्जी मिल रही है उन सभी को कंसंट्रेट करें उस जगह पे जहां पर हम अपना काम करवाना चाहते हैं, लाइक कुकिंग. ठीक है, तो देखिए, फॉर मॉडरेट हीटिंग सन रेज आर रिफ्लेक्टेड बाय यूजिंग प्लेन मिरर, जैसा कि हम सोलर कुकर्स में और सोलर वाटर हीटर्स में करते हैं. प्लेन मिरर से वो रिफ्लेक्ट होके चले जाती है बॉक्स के अंदर, राइट, एंड दे हीटेड दैट बॉक्स अप. लेकिन if we want to achieve the high temperatures, we should use this type of concave reflectors. ठीक है, sun's energy is concentrated using concave mirror as reflector. Second thing जो हमें maximum utilization करवा सकता है वो है black paint. Yes, black paint क्यों? क्योंकि black ऐसा आपको पता है फिजिक्स में black is not a color. ठीक है, black like जो भी उसके ऊपर फॉल हो रहा है वो सब एब्जॉर्ब हो रहा है, that is black.
ठीक है। तो मतलब जो हमारी सनलाइट है, जब वो 7 के 7 कलर्स वाली जो लाइट है वो उस ब्लैक सरफेस पे पड़ती है, फॉल होती है, तो वो ब्लैक सरफेस क्या करता है, सबको एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करता, तो तुम्हारी आंखों तक कुछ जाता ही नहीं। जब तुम्हारी आंखों में कुछ जाएगा ही नहीं, यू आर गोइंग टू सी इट लाइक ब्लैक। ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये ब्लैक जो है हमें बहुत हेल्प करेगा। हम लोग क्या करते हैं, जो बॉक्स होता है, सोलर हीटर्स होते हैं, सोलर कुकर्स होते हैं, उनको इनसाइड से हम क्या करते हैं, ब्लैक पेंट करवा देते हैं, ताकि जितनी भी सन रेज बॉक्स के अंदर जा रही है थ्रू ग्लास, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास, वो क्या है, उन ब्लैक सर्फेसेस से एब्जॉर्ब होके दे गिव आउट लाइक मैक्सिमम हीट। ठीक है, बहुत सारी हीट वहां पर क्रिएट कर देते हैं। बाय दैट हम थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर अचीव कर सकते हैं। ये ब्लैक जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्प करने वाला है। देखो, ब्लैक बॉडीज आर गुड एब्जॉर्बर एज वेल एज गुड रेडिएटर्स ऑफ हीट, तो वो बढ़िया सा एब्जॉर्ब कर लेती है जितना भी एनर्जी उसके ऊपर फॉल होता है, प्लस वो क्या करती है, उनको रिफ्लेक्ट भी करती है, जितना एनर्जी जो है उसने एब्जॉर्ब किया है उतना ही उसको रिफ्लेक्ट भी कर देती है। Hence, black paint used to absorb and store heat radiations in large quantity by using large surface area. अब पूरा का पूरा सोलर कुकर आपने अगर अंदर से ब्लैक पेंट कर दिया है, तो इन दैट केस जितना भी फॉल हुई है इलेक्ट्रिक यू कैन से सोलर एनर्जी, वो सब एब्जॉर्ब हो जाती है, राइट। और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया आप लेंगे, मतलब जितना बड़ा बॉक्स बनाएंगे, तो उतना ज़्यादा अच्छा होगा, उतनी ज़्यादा हीट वहाँ पर एब्जॉर्ब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये हमें यू कैन से दो चीज़ें ऐसी हैं जो हमें हेल्प करेंगी हमारे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन को। ठीक है। थर्ड थिंग जो आती है वो है ग्लास शीट कवर। वाई सो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब ये ग्लास शीट कवर इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये ग्लास शीट क्या करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखाता है। ये एक बार हीट रेडिएशंस को अपने से गुजरने के बाद उन्हें वापस नहीं आने देता। यही फायदा हम सोलर कुकर्स में भी उठाते हैं। कैसे? जब ग्लास शीट के अंदर जो सन रेज है वो चले जाती हैं, तो वो बाहर नहीं निकल पाते। नाउ दे आर ट्रैप इनसाइड दैट सोलर कुकर, बिकॉज ऑफ दैट जो टेम्परेचर है वो अंदर का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। अब क्योंकि ये टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, सो इन दैट केस हमें क्या पता चलेगा, जितना भी टेम्परेचर हमें यूज हो रहा है, मतलब जितना हमें चाहिए टू कुक दैट फूड आइटम, तो वो हमें ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा एंड ईजिली हम लोग कुक कर लेंगे विद यू कैन से मच लेस टाइम। ठीक है। सो दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। अब ये ग्लास कवर ऐसा क्या करता है जो एक बार रेडिएशंस को अंदर जाने के बाद बाहर नहीं जाने देता? The reason is जो IR radiations होती है, remember the type of radiations we have seen in the visible light and the sun rays falling on the earth, उसमें से तीसरी थी IR radiations, right? ऐसी रेडिएशंस जो कि काफ़ी शॉर्टर वेवलेंथ की होती हैं, एक बार वो ग्लास में से चले जाए, ठीक है, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन और यू कैन से ब्लैक बॉडी का जो रेडिएशंस वहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ है, वो जब एमिट करते हैं, दे बिकम ऑफ लॉन्गर यू कैन से वेवलेंथ। शॉर्टर वेवलेंथ कैन एंटर इनसाइड द बॉक्स, राइट, बट लॉन्गर वेवलेंथ को वो उन्हें बाहर नहीं जाने देता, एंड दैट इज द रीजन ये जो ग्लास है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को शो करता है। ठीक है। देखिए, ग्लास शीट कवर इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द हॉट इंफ्रा रेज ऑफ सोलर एनर्जी फ्रॉम एस्केपिंग द बॉडी ऑफ ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स में से बाहर नहीं जाने देता, सो दे आर ट्रैप्ड इनसाइड। बिकॉज ऑफ दैट वहाँ के पूरा जो यू कैन से कंटेनर है, पूरा जो सोलर कुकर है, वो कैसा हो जाता है, हीट अप हो जाता है, क्योंकि हीट एनर्जी तो ट्रैप हो गई, वो बाहर नहीं जा पा रही है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किस तरह इट अलाउज द IR रेडिएशन ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, जो फॉल हो रही है, जो सन से आ रही हैं, वो शॉर्टर वेवलेंथ की IR रेडिएशंस हैं, यानी इंफ्रारेड रेडिएशंस। ठीक है, to enter the box of the solar heating device and do not allow IR radiations of longer wavelength to escape। ठीक है। तो शॉर्टर वेवलेंथ की एंटर हो जाती है, बट उनको जब वो लॉन्गर वेवलेंथ की बनती हैं, सो दे आर नॉट एबल टू एस्केप फ्रॉम द डिवाइस, एंड दैट्स द रीजन वी आर गोइंग टू गेट अ हाई टेम्परेचर ओवर देयर, एंड दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू गेट कुक्ड आवर फूड। ठीक है। सो ये तीन ऐसी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट टाइम है, मतलब तीन ऐसी चीज़ें, या फिर यू कैन से
कुछ ऐसे वेज जिनकी हेल्प से आप सोलर डिवाइसेस, सोलर हीटिंग डिवाइसेस की यू कैन से एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो इसमें आप सोलर एनर्जी जितनी भी आपके पास अवेलेबल है उसका मैक्सिमम यूज कर सकते हो, राइट। ये हमारा बेटरमेंट के लिए आपको ये 3 चीजें याद रखनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, जो ये 3 चीजें यूज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज, लेकिन पहले हम ग्रीन हाउस इफेक्ट देख लेते हैं, ठीक है। देन वील बी टॉकिंग अबाउट दोस डिवाइसेस जिसके अंदर वो तीनों चीजें यूज हो रही हैं, ठीक है। सो देखो, द प्रॉपर्टी ऑफ ग्लास ऑफ ट्रैपिंग हीट बाय अलाउइंग शॉर्टर वेवलेंथ हीट रेज टू पास थ्रू इट बट नॉट अलाउइंग लॉन्गर वेवलेंथ हीट रेज टू पास इट, कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखिए, सन का एटमोस्फेयर, सॉरी अर्थ का जो एटमोस्फेयर है, बाहर का एटमोस्फेयर है, राइट। तो सारी लाइट रेज जो आ रही हैं, ठीक है, सारी लाइट रेज जो आ रही है, कैन यू गेट दीज रेड वंस, ये रेड वन जो है वो बाहर नहीं जा पा रही, दे आर कमिंग इनसाइड अगेन, सो दे आर ट्रैप्ड इनसाइड, ऑलराइट। लेकिन जो ऑरेंज कलर की हैं वो वापस चले जाती है, ठीक है। सो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। सो यहाँ पर सनलाइट का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, बट कुछ पार्ट यानी कि आईआर रेडिएशन जो है वो ट्रैप हो जाती है हमारे ही एटमोस्फेयर में, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ CO2, राइट। एंड यही काम कौन करता है, यहाँ पर ग्लास करता है। बिल्कुल यही, ये जो आप देख पा रहे हैं कि ये जो रेड लाइट आ रही है, ठीक है, जब ये फॉल होती है तो उसके बाद क्या हो रहा है, अर्थ से रिफ्लेक्ट होने के बाद जब ये ऊपर गई तो इस एटमोस्फेयर ने इसे बाहर नहीं जाने दिया। इसका मतलब ये जो एटमॉस्फेयर है ये बिल्कुल ग्लास की तरह बिहेव कर रहा है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारा ग्लास बिल्कुल इस एटमॉस्फेयर की तरह बिहेव करता है। ये आईआर रेडिएशन की हायर वेवलेंथ की लाइट्स को बाहर नहीं जाने देता, ठीक है। एंड दैट इज हाउ मच हीट इज गेट ट्रैप्ड, एंड इसी वजह से, बिकॉज इसी वजह से हमारी अर्थ का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। दैट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो काम हो रहा है, एंड ये ग्लोबल वार्मिंग जो है ये हमारी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। दैट मीन्स इट इज रिटेनिंग मोर एंड मोर हीट and not letting the IR radiations from the, you can say, escaping the earth, right? And that is the reason हमारी अर्थ का whole temperature बढ़ता जा रहा है, just because of this greenhouse effect। और यही greenhouse effect हम use करते हैं so that we can get maximize solar energy, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं वो फर्स्ट वन, दैट इज द बॉक्स टाइप सोलर कुकर। अब ये जो बॉक्स टाइप सोलर कुकर है, लेट्स सी व्हाट इज इट। देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये है वो ग्लास कवर, ठीक है, दिस इज द ग्लास कवर, यू कैन सी द ग्लास शीट ओवर हियर। ट्रांसपेरेंट ग्लास है, लाइट रेज अंदर जा सकती हैं, आप अंदर देख सकते हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पर बॉक्स के इस सरफेस पर यानी कि इसके टॉप पर वी आर गोइंग टू यूज व्हाट, प्लेन मिरर, ठीक है, क्योंकि वो क्या कर सकता है, रिफ्लेक्ट कर सकता है, ठीक है। सो इस जगह पर होगा कौन, प्लेन मिरर। ये जो है जिससे हम इसे क्या करेंगे, ढक देंगे, ठीक है, कवर अप कर देंगे। सो दिस इज ग्लास, ठीक है, नॉर्मल ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास, ठीक है। अंदर आप देख सकते हैं, अंदर जो सरफेसेस हैं ये ब्लैक हैं, ठीक है। तो जो बॉक्स है पूरा का पूरा, तो अंदर से क्या किया हमने, क्या किया, उसको अच्छे से ब्लैक पेंट कर दिया। तो इनसाइड के चारों बाउंड्रीज एंड उसका बेस ब्लैक कलर का है, ठीक है। एंड यू कैन सी द कंटेनर्स हियर, ये 4 कंटेनर्स रखे हैं जिनके अंदर खाना है और हमें इन्हें पकाना है बेसिकली। सो व्हाट इज इट। अब हम जब इसे धूप में रखेंगे तो क्या होगा, ठीक है, धूप में रखेंगे तो सारी की सारी लाइट इस प्लेन मिरर पे फॉल करेगी, और कुछ मतलब यू कैन से डेफिनेटली प्लेन मिरर के साथ साथ इस पूरे बॉक्स पे लाइट फॉल होगी, ठीक है, सनलाइट फॉल होगी। तो डायरेक्टली इस कांच के अंदर जब इस कांच को ढक देंगे, इट विल बी लाइक प्लेन कवर्ड अप, ठीक है। तो क्या होगा, कांच के ऊपर जो लाइट रेज जाएंगी वो तो अंदर ट्रैप हो जाएंगी, एंड इस मिरर के ऊपर जो लाइट रेज जाएंगी वो भी रिफ्लेक्ट होने के बाद कांच के अंदर चले जाएंगी, ठीक है। सो इसका जितना अमाउंट ये एब्जॉर्ब कर सकता था उसका डबल अमाउंट अब ये कर रहा है, ठीक है, डबल तो नहीं कह सकते बट लिटिल बिट मोर अमाउंट ये एब्जॉर्ब कर रहा है। ज़्यादा एब्जॉर्प्शन से क्या होगा, धीरे 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 सारी रेज अंदर हीट एनर्जी ट्रैप होगी, उसका धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, एंड देन हमारा जो खाना है वो कुक हो जाएगा, ठीक है। सो देखिए, सोलर कुकर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर कुकिंग फूड विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी की हेल्प से हम अपना खाना पकाते हैं, कुक करते हैं, ठीक है। अ बॉक्स इज मेड अप ऑफ अ नॉन कंडक्टिंग मटीरियल लाइक प्लास्टिक और फाइबर ग्लास एंड पेंटेड ब्लैक फ्रॉम इनसाइड इज यूज्ड फॉर मेकिंग द सोलर कुकर। ऐसा डिवाइस, यू कैन से ऐसा सब्सटेंस हमें यूज करना होगा जो क्या करे, अंदर की हीट को बाहर कंडक्ट नहीं करे। इसका मतलब वी हैव टू यूज द इंसुलेटर ऑफ हीट, जैसे कि वुड,
ठीक है, जैसे कि आप थर्मोकॉल यूज कर सकते हैं, ठीक है, आप उसके आउटर बॉक्स पे थर्मोकॉल लगा सकते हैं ताकि इनसाइड एनर्जी लेयर्स के थ्रू या बॉक्स के कवर के थ्रू बाहर नहीं जाए, ठीक है, आपने उसको स्टॉप कर। जैसे आप इस बॉक्स को देखो, इट इज मेड अप ऑफ वुड, तो अब इसके अंदर की जो जितनी भी एनर्जी है ट्रैप हुई है वो बाहर इन बॉक्सेस की हेल्प से भी नहीं आने, मतलब इन साइड से भी नहीं आएगी, ठीक है। The cooker is placed in the sunlight and position of the reflector is adjusted in such a way that strong beam of light falls over the cooker top. Right, तो बेसिकली आपको वहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से इसको सेट कर देना है कि जो स्ट्रॉन्ग बीम है, ठीक है, वो किस तरीके से फॉल करेगी प्लेन मिरर पे, एंड देन इट विल गो इनसाइड द सोलर कुकर, ठीक है। These rays pass through the transparent glass sheet, therefore the box and the containers absorb maximum amount of infrared radiations from the sunlight falling on it. तो अब जब वो रिफ्लैक्ट होने के बाद, let it be a plain mirror, रिफ्लैक्ट होने के बाद जब वो बॉक्स के अंदर जाएगी थ्रू द ग्लास शीट, तो दे विल गेट ट्रैप्ड इनसाइड इट, और स्ट्रॉन्ग बीम है तो इसका मतलब टेम्परेचर विल रेज मच मोर क्विकली इनसाइड द बॉक्स, ठीक है, तो इससे हमारा खाना जल्दी पकने के चांसेस हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर इनसाइड द बॉक्स राइजेस अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस टू 130 डिग्री सेल्सियस, एंड दैट इज वेरी मच हाई, राइट। तो इसका मतलब कुक होने के चांसेस ज्यादा हो गए हैं, ठीक है। सो दिस इज द बॉक्स टाइप सोलर कुकर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिफ्लेक्टर जो कि स्फेरिकल हो, जैसे कि हमने कनकेव रिफ्लेक्टर के बारे में देखा था, सच टाइप ऑफ रिफ्लेक्टर जो है इनको हम देखने वाले हैं। सो देखिए, इस तरीके के जो सोलर कुकर होते हैं, देयर इज एन इंसुलेटेड मेटल बॉक्स पेंटेड ब्लैक फ्रॉम इनसाइड, ठीक है, तो एक बॉक्स रहता है, ठीक है, अंदर से ब्लैक रहता है, ठीक है। अ स्फेरिकल रिफ्लेक्टर इज यूज्ड हियर इन प्लेस ऑफ प्लेन मिरर। यहाँ पे प्लेन मिरर की जगह पे हम क्या कर रहे हैं, एक कनकेव रिफ्लेक्टर को यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर हाई टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। इफ वी वांट हाई टेम्परेचर देन वी आर गोइंग टू यूज द रिफ्लेक्टर, ठीक है। आइदर दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्टर्स आर देयर, ठीक है, आइदर हम उसी सोलर कुकर में क्या करें, प्लेन मिरर की जगह पे एक रिफ्लेक्टर लगा दे, कनकेव रिफ्लेक्टर लगा दे, ठीक है। सो देयर आर द टाइप्स ऑफ यू कैन से सोलर कुकर्स ओवर देयर, ठीक है। आप ये भी यूज कर सकते हैं टू गेट द हीट, एंड आप उस कनकेव को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर द स्फेरिकल रिफ्लेक्टर इज आइदर अ कनकेव रिफ्लेक्टर और अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, सारी लाइट को एक ही पॉइंट पे क्या कर देते हैं, कंसंट्रेट कर देते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, एंड दैट इज वाई इन्हीं को ही हमने, कनकेव को ही जो है मेनली यूज करा है, ठीक है, या फिर यूज करना भी चाहिए। द सनलाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल रिफ्लेक्टर गेट्स कंसंट्रेट टू वन पॉइंट, और उसी पॉइंट पे रखा होना चाहिए हमारा फूड, ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिल सके, सोलर एनर्जी मिल सके। This will produce a lot of heat at that point, and temperature in that region will become very high. Therefore, in this type, a utensil is placed in this, you can say at that point, जहाँ पर भी sunlight क्या हो रही है, you can say concentrate हो रही हैं, focus हो रही हैं, ठीक है। So यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फायदा है, because हमें यहाँ पे हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इवन चपातीज भी कुक कर सकते हैं, इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर वहाँ पर हो जाता है, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू गेट द हाई एनर्जी when we are using this much of the, you can say, concave reflector. अगर आप प्लेन मिरर यूज कर रहे हैं तो इस कनकेव रिफ्लेक्टर की तुलना में यू आर गोइंग टू गेट लेस एनर्जी, ठीक है। और वो भी सोचिए, वो भी आपको 100 डिग्री सेल्सियस तक या 130 डिग्री सेल्सियस तक मिल रही है एनर्जी। सो कनकेव से आपको कितने तक मिलेगी, और भी ज़्यादा मिलने वाली है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये किस तरीके से होता है, सोलर रेज स्फेरिकल रिफ्लेक्टर पे फॉल हो रही हैं, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर गेटिंग फोकस्ड एट अ पॉइंट। इस जगह पर होता है हमारा कंटेनर जिसमें होता है खाना, ठीक है, एंड यहाँ से हमारा जो खाना है वो जल्दी जल्दी कुक होने के चांसेस हैं। ऑलराइट, चलिए अब आगे चलते हैं, एंड लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन द बॉक्स टाइप सोलर कुकर एंड स्फेरिकल रिफ्लेक्टर टाइप सोलर कुकर, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंसेस देखिए। पहले वाले देखिए, अ प्लेन मिरर रिफ्लेक्टर इज यूज। अगर हम बॉक्स टाइप रिफ्लेक्टर को यूज करें, सॉरी बॉक्स टाइप सोलर कुकर को यूज कर रहे हैं, तो हम प्लेन मिरर यूज करेंगे, ठीक है, एज अ रिफ्लेक्टर। लेकिन स्फेरिकल रिफ्लेक्टर में जो है, जो कुकर स्फेरिकल रिफ्लेक्टर रखता है, उसके अंदर हम स्फेरिकल रिफ्लेक्टर को ही यूज करेंगे, मतलब द मिरर इज, यू कैन से, कर्व्ड, राइट, स्फेरिकल मिरर।
तो देखिए बॉक्स टाइप में क्या हो रहा है, इन अ बॉक्स टाइप सोलर कुकर कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर इज प्रोड्यूस, ठीक है, थोड़ा सा लो टेम्परेचर प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन इसके कंपैरिजन अगर हम देखें तो स्फेरिकल रिफ्लेक्टर टाइप सोलर कुकर के अंदर हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो वी कैन गेट हाई टेम्परेचर। सो इट्स ऑन अप, इट्स वी कैन से इट्स ऑन यू कि आपको कितना टेम्परेचर रेज करना है। इफ यू वांट टू रेज मच हाई टेम्परेचर, यूज द रिफ्लेक्टर, स्फेरिकल रिफ्लेक्टर, एंड अगर आपको लिटिल बिट कम टेम्परेचर चाहिए यू कैन यूज द प्लेन मिरर, ठीक है। अब प्लेन मिरर वाले देखिए बॉक्स टाइप सोलर कुकर में देखिए इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मेकिंग चपातीज बिकॉज ऑफ इट्स लेस टेम्परेचर, और यहाँ पर हम चपातीज और फ्राइंग के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं बिकॉज ये काफी ज्यादा टेम्परेचर जो है हुक कर देता है उस जगह पर, उस पॉइंट पर जहां पर भी लाइट एनर्जी फोकस हो रही है। यूज फॉर कुकिंग फूड रिक्वायरिंग स्लो हीटिंग, ऐसे फूड जहां बनते हैं जिनमें बहुत ही धीरे धीरे हीट चाहिए, फॉर एग्जाम्पल खीर, काफ़ी अच्छी खीर बन सकती है, ठीक है, चावल कुक हो सकते हैं जहाँ पे धीरे धीरे जो है हीटिंग होगा, मतलब आप सुबह रखेंगे तो यू विल बी गेटिंग लाइट आफ्टर 2-3 आवर्स यू आर गोइंग टू गेट योर फूड, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग उन फूड को कुक करने में यूज़ कर सकते हैं जिन्हें ज़्यादा हीट चाहिए होती है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चपातीज, तो वो जल्दी जल्दी भी बनेंगी, राइट, सो इट वुड बी लाइक अ हेल्पिंग फैक्टर, ठीक है। तो आप अपने यूज़ के अकॉर्डिंग कि भाई आपको कौन सा खाना पकाना है उसके अकॉर्डिंग यू कैन यूज़ इट, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सोलर सेल की। सोलर सेल जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है, दिस इज वन सेल, वन सोलर सेल बेसिकली। ये जो सोलर सेल है ये एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। सो व्हाट हैपेंस, हाउ इट डज, लेट्स सी। Solar cell is a device which converts solar energy directly into electricity. हमें फिर कोई प्रोसेस नहीं करनी, ठीक है, एक बार अगर हमने इसे इंस्टॉल कर दिया तो वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, ये अपने आप सारा काम करता रहेगा। एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम द सन ऑल्सो कंटेन्स लाइट एनर्जी, जो एनर्जी सन से हम तक पहुंचती है उसके अंदर लाइट एनर्जी भी होती है, सबको पता है ये बात। सो सोलर सेल्स आर ऑल्सो नोन एज फोटोवोल्टाइक सेल्स, इसीलिए सोलर सेल्स को हम फोटो दैट मीन्स लाइट, फोटोवोल्टाइक सेल्स हम लोग बोलते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली फ्रॉम सनलाइट इज रेफर टू एज अ फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। सो फोटोवोल्टाइक इफेक्ट इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं जिस प्रोसेस की हेल्प से सनलाइट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। द फोटोवोल्टाइक इफेक्ट अकर्स व्हेन सोलर रेडिएशन स्ट्राइक सर्टेन सेंसिटिव मटेरियल डायरेक्टली एंड रिजल्ट्स इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो बेसिकली हमें चाहिए एक स्पेशल मटेरियल, अगर उस मटेरियल के ऊपर सनलाइट फॉल करती है तो उस केस में उस मटेरियल पे जब सनलाइट फॉल करेगी तो उस केस में इस मटेरियल के अंदर प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो होने लगते हैं, दैट मीन्स द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग बट विद द हेल्प ऑफ द एनर्जी दे गेन फ्रॉम द सनलाइट। सो वी आर गोइंग टू गेट अ स्पेसिफिक मटेरियल ओवर देयर, ये किसी भी मटेरियल का नहीं बन सकता, राइट, ये बात आपको नोट करनी है। एंड इससे हमें पता चलेगा कि ये जो सोलर है ये इतनी महंगी क्यों है, ठीक है। इट वॉज फाउंड दैट व्हेन 0.6% ऑफ द सोलर एनर्जी फॉलिंग ऑन द सेलेनियम लेयर गॉट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। सो यू कैन गेट अप टू दैट जितना भी सनलाइट फॉल हो रहा है उसका 0.6% एनर्जी जो है सेलेनियम लेयर जो है, दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मटीरियल, वो क्या कर सकता है 0.6% का सनलाइट को एंड जो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकता है। एंड दिस इज द अमाउंट यू कैन से अ स्मॉल लेयर, ठीक है, स्मॉल लेयर का अमाउंट है जो वो कन्वर्ट कर रही है इन द इलेक्ट्रिसिटी। With the advancement in the field of semiconductors, such type of materials are known as the semiconductors, specifically for this making of solar cells, ठीक है। तो वहाँ पर यूज होता है semiconductors, not conductors, not insulators, सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। अब देखिए बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट होने के साथ साथ जो काफ़ी ज़्यादा सेमीकंडक्टर्स को इम्प्रूव किया गया है, डोपिंग किया हुआ है, देखिए द सोलर सेल्स मेड फ्रॉम दीज सेमीकंडक्टर्स कैन कन्वर्ट 10 to 15% ऑफ द सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। यू कैन सी 0.6% और आप अब देखिए 10 to 15%, तो मतलब कितना ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। अगर 100% लेट्स इमेजिन जितना भी सोलर एनर्जी है उसका 0.6% कन्वर्ट हो रहा था, मतलब कितना कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। वहीं पर अब एडवांसमेंट के बाद अब हो रहा है 10 to 15%, मतलब जितना भी सोलर एनर्जी इन सेल्स पे फॉल होता है ये सेल 10 to 15% तक का एनर्जी आपको दे देते हैं, ठीक है।
दैट इज द गुड थिंग, कम से कम इतना तो हमें मिल रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेमीकंडक्टर्स। ये क्या चीज़ होते हैं और ये किस तरीके से क्यों हम इन्हें सोलर सेल्स में बेसिकली यूज करते हैं, वाई दीज सेमीकंडक्टर्स ओनली। ठीक है, सो देखिए सेमीकंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी बहुत ही कम इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी होती है। बेसिकली कंडक्टर्स की ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, जैसे कि हमारे पास कॉपर है। ठीक है, तो ये जो सेमीकंडक्टर है इनमें ना तो ज़्यादा कंडक्टिविटी होता है, ना ये ज़्यादा इंसुलेटर्स होते हैं। मतलब दीज आर लाइक कुछ ऐसे बीच के सब्सटेंसेस हैं जो कि ना तो इंसुलेटर हैं ना ही कंडक्टर हैं, तो इनकी काफ़ी कम कंडक्टिविटी रहती है। ठीक है, अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन सेमीकंडक्टर मटेरियल कंडक्ट ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम नॉर्मली बोलें तो क्योंकि वो कंडक्टर से नीचे आते हैं, उनकी जो कंडक्टिविटी है वो काफ़ी कम है, तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसमें से ट्रांसफर हो सकती है, मतलब रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। बट इफ सर्टेन इम्प्योरिटीज आर एडेड टू सेमीकंडक्टर मटेरियल्स देन देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस कंसीडरेबली। यहाँ पे आता है एक मेन चीज कि भाई यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इनके अंदर इम्प्योरिटीज मिला रहे हैं। तो कोई सब्सटेंस अगर सेमीकंडक्टर है, ठीक है, हालांकि अभी देखिए सेमीकंडक्टर के केस में मतलब वो काफी कम इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से लेके जा पाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पता करा कि भाई अगर हम इसके अंदर कुछ और इम्प्योरिटीज डाल दें, इम्प्योरिटीज डाल दें मतलब किसी और एटम को मिक्स कर दे, किसी और एलिमेंट के एटम को मिक्स कर दें अगर हम, तो उस केस में इनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो इस केस में हमने क्या किया, हम इस प्रोसेस को मतलब दूसरी इम्प्योरिटीज को जब हम मिलाते हैं किसी भी एक सेमीकंडक्टर में, सो दिस इज नोन एज डोपिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमने क्या कर दिया, कुछ इम्प्योरिटीज डाल दी, मतलब दूसरे एलिमेंट को मिक्स कर दिया। ठीक है, अब देखिए उसके बाद फिर क्या होगा, उसकी इलेक्ट्रिकली जो कंडक्टिविटी है वो काफी अमाउंट तक बढ़ जाती है। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स आर नाइदर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नॉर दे आर कंप्लीटली इंसुलेटर। वो बीच में आते हैं, ना तो वो अच्छे कंडक्टर हैं और ना ही वो अच्छे इंसुलेटर। सो दे हैव लाइक लिटिल बिट ऑफ कंडक्टिंग प्रॉपर्टी, राइट, वी कैन से दैट। द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डोपिंग। ठीक है, तो अगर हम किसी एक सेमीकंडक्टर में दूसरे एलिमेंट के कुछ एटम्स मिला रहे हैं, ठीक है, इम्प्योरिटी, उसके लिए तो इम्प्योरिटी हुआ, राइट, तो ऐसे ही इम्प्योरिटी मिला रहे हैं, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द डोपिंग। अब ये डोपिंग दो तरीके की होती है। ठीक है, मतलब इट्स ऑन अस। ठीक है, कैसे, या तो हम क्या करें, इस मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन्स निकाल लें, या फिर अब हम क्या कर सकते हैं कि वी आर एडिंग द इम्प्योरिटीज। ठीक है, अब ये जो इम्प्योरिटी है ये दो तरीके की हो सकती हैं। कैसे, मान लीजिए आप एक ऐसा एलिमेंट ऐड कर रहे हैं जिसके खुद के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ठीक है, इन दैट केस वो क्या कर सकता है, वो क्या कर सकता है, उस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, एंड वी कैन से अगर हम कोई ऐसा मटेरियल डाल रहे हैं जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो वो उस सेमीकंडक्टर को इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। ठीक है, देखिए द मटेरियल सेमीकंडक्टर डोप्ड विद बोरोन हैज एन एफिनिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड इज टर्म्ड एज पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो देखिए जब कभी भी हम किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर बोरोन डाल देंगे तो बोरोन डालने के बाद उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की पावर बढ़ जाती है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, क्या करने की, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की। उस वक्त हम इसे क्या बोलते हैं, पी टाइप। वाई सो, इलेक्ट्रॉन्स तो वही अट्रैक्ट करेगा ना जिसके पास कमी है इलेक्ट्रॉन्स की, राइट, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है ना। इसी वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर, यानी कि एक्सेप्टर। ठीक है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है, तुम अगर इलेक्ट्रॉन्स दोगे वो एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर नोन एज द पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसके पास क्या रहती है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी रहती है, तो इसको बस चाहिए, ये एक्सेप्टर है। ठीक है, अब हम देखते हैं ऐसे सेमीकंडक्टर्स में जिसके अंदर हम फॉस्फोरस डाल देंगे तो क्या होगा, अब उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे क्योंकि फॉस्फोरस ऐड कर दिया, फॉस्फोरस के पास काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जो सेमीकंडक्टर है, फॉस्फोरस जाने के बाद अब उसके पास क्या हो गए हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। ठीक
ठीक है। अब उसके पास ये एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को दे सके, यानी कि डोनेट कर सके। इसी वजह से हम इसे बोलेंगे एन टाइप, यानी नेगेटिव। नेगेटिव क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को दे सकते हैं। ठीक है, तो अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, पॉजिटिव यानी कि एक्सेप्टर जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, और ऐसे सेमीकंडक्टर्स जो कि डोनेट करते हैं, उन्हें हम एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब सोलर एनर्जी इन सेमीकंडक्टर मटेरियल्स पे फॉल होती है, इवन व्हेन देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। अब जब इस तरीके से इन पे फॉल हो रही है, लेट इट बी लाइक एन टाइप सेमीकंडक्टर पे फॉल हो रहे हैं, सो देयर आर एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। जब एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या करेंगे, एनर्जी लेते ही भागने लगेंगे ना। दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू गेट दी करंट इनसाइड दी सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उनकी बढ़ जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि भाई उस मटेरियल का बना हुआ ये सोलर सेल, यानी सेमीकंडक्टर का बना हुआ ये सोलर सेल बेसिकली कैसे कंडक्शन करता है। सो देखिए, इसे बनाया जाता है, सोलर सेल को स्पेसिफिकली सिलिकॉन एंड गैलियम से बनाया जाता है। और सिलिकॉन का भी नॉर्मल सिलिकॉन नहीं, एक स्पेशल टाइप का सिलिकॉन जो रहता है उसी से बनाया जाता है। सो सिलिकॉन एंड गैलियम इन दोनों से बनाया जाता है मिला के। इट्स कंडक्टिविटी इंक्रीजेज व्हेन लाइट फॉल्स ऑन दैम, जब उनके ऊपर लाइट गिरती है। ठीक है, हमने सेमीकंडक्टर तैयार कर दिया है यूजिंग दीज सिलिकॉन एंड गैलियम। ठीक है, अब जब लाइट इनके ऊपर फॉल होगी तो क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी और इसके अंदर प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फ्लो होने शुरू हो जाएंगे। अब जब वो फ्लो होने लग गए हैं तो करंट वहां पे है, राइट। Therefore, in a solar cell, the pieces, usually wafers of semiconducting materials containing impurities, यानी कि doped, already doped, are so arranged that when light falls on them, then a potential difference is produced between two regions of the semiconductor. अब यहाँ पे मेन बात क्या है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए डेफिनेट सी बात है एक पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, राइट। उसको धक्का कौन देगा, राइट, पोटेंशियल डिफरेंस धक्का देने का काम करता है। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे जनरेट होगा, वो कुछ इस तरीके से हम लोग उस पूरे सेमीकंडक्टर को अरेंज करते हैं कि पूरे सेमीकंडक्टर के 2 पॉइंट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे एंड वी आर गोइंग टू गेट द करंट ओवर देयर। ठीक है, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट अ सोलर सेल ऑफ अबाउट 4 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया may produce potential difference of about 0.4 volt to 0.5 volt and generate a current of 60 milliampere। तो इसका मतलब एक सेल जो कि सिर्फ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया का है, वो कितना करंट प्रोड्यूस कर सकता है, वो 60 मिली एम्पियर का करंट प्रोड्यूस कर सकता है, यानी 60 × 10⁻³ एम्पियर, है ना। और 0.4 to 0.5 वोल्ट जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। दिस इज वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, है ना, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट है। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ सेल जॉइन टुगेदर इन अ डेफिनेट पैटर्न कैन प्रोवाइड मच हायर पावर ऑफ मेनी यूजेस। द ग्रुप ऑफ सोलर सेल्स इज कॉल्ड सोलर सेल पैनल। तो ये तो है इकलौता सोलर सेल, इसी सोलर सेल को जोड़ के, क्योंकि ये इकलौता सोलर सेल तो काफ़ी कम अमाउंट ऑफ जो करंट है वो प्रोड्यूस करता है। अगर हम ऐसे ही बहुत सारे सोलर सेल्स को लगा दें तो करंट का जो अमाउंट है वो ज़्यादा मिल सकता है, राइट। इसी वजह से सोलर सेल पैनल बनाया जाता है जिसमें एक से ज़्यादा सोलर सेल्स होते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द सोलर सेल पैनल। वो कुछ ऐसा होता है, दिस वन बॉक्स इज वन सेल, सेकेंड सेल, ऐसे ऐसे करके जितने बॉक्सेस आप देख रहे हैं ना, इतने बड़े वाले जो बॉक्सेस देख रहे हैं स्क्वायर बॉक्सेस, दीज आर लाइक वन सोलर सेल। इन सबको कनेक्ट करके वी मेड अ सोलर सेल पैनल एंड अब हमें थोड़ा ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है। सो देखिए, जब सोलर सेल्स को अरेंज कर दिया जाता है साइड बाय साइड, connecting each other in such a way that total potential difference and the total capacity to provide electric current is much increased, then this arrangement is called solar cell panel। इस तरीके से उनको अटैच कर दिया गया है सोलर सेल्स को कि जो टोटल करंट है या फिर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो काफी ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, यानी कि जितने भी सेल ने बनाए हैं इलेक्ट्रिक करंट, दे आर गोइंग टू एड अप, right? The electric power required for the working of artificial satellites in outer space, street lighting in remote areas and running of irrigation water pumps in far off areas obtained with the help of solar cell panel। तो ये solar cell panels
काफ़ी अमाउंट की जो एनर्जी है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। इसी वजह से जो प्रोब्स होते हैं जिन्हें स्पेस में भेजा जाता है, सैटेलाइट्स होती हैं जिन्हें स्पेस में भेजा जाता है, उन पर भी सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तो सन हमेशा मौजूद रहता है, राइट। सो वहाँ पर जो मिलती है सन की एनर्जी, उसी से जो पूरा जितना भी उन्हें एनर्जी चाहिए वो एनर्जी बनती है एंड दे यूज दैट एनर्जी। वहीं पर अगर हम नॉर्मली धरती पे रहने वाले लोगों की बात करें तो छोटे छोटे कामों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जैसे स्ट्रीट लाइट्स, वो अब फिर दैट वुड बी लाइक फ्री ऑफ एनर्जी। अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि सोलर स्ट्रीट लाइट हम लोगों ने लगा दी, राइट। उसी तरीके से इरिगेशन पंप्स में भी हम लोग यूज़ करते हैं। इन अ सोलर पैनल 100 solar cell panel, hundreds of solar cells are joined together. The electricity produced by this solar panel is stored in a battery. Remember, we are going to get a battery too. ठीक है, this battery runs an electric motor and finally the motor drives water pump which pumps out the underground water. So ये जो irrigation pump की हम बात कर रहे हैं उसके केस में होता है कि एक सोलर सेल पैनल के अंदर 100 सेल्स होते हैं, ठीक है। इस और ये जितना भी एनर्जी दिन के टाइम में प्रोड्यूस करते हैं वो सारी की सारी एक बैटरी में स्टोर हो जाती है ताकि रात के समय हम उसी एनर्जी को यूज कर सकें, राइट। अब वो जो बैटरी में स्टोर हुई है एनर्जी, उस बैटरी की हेल्प से मोटर चलती है, ठीक है, बिकॉज मोटर तो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, राइट। तो वो जो मोटर चलती है देन जो भी पानी है अंडरग्राउंड से बाहर आता है। सो बेसिकली काफ़ी सारे ऐसे डिवाइसेज हैं जिनमें हम सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सोलर सेल पैनल, जो आगे के सोलर हैं। देखिए ये पूरा का पूरा सोलर सेल पैनल है, ठीक है, इसमें है सोलर सेल्स, ठीक है, यू कैन गेट अप टू दैट, दीज आर सोलर सेल्स। अब यहाँ पर सनरेज फॉल हो रही हैं, है ना, यहाँ सनरेज फॉल हो रही है, मतलब ये सारे के सारे सेल्स क्या कर रहे हैं, जो पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर पा रहे हैं वो यहाँ करेंगे, राइट। यहाँ पर इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट जो है यहाँ पे जनरेट होगा और इस पाइप के यू कैन से इस वायर्स के थ्रू वो कहाँ चला जाएगा, वो इस बैटरी के अंदर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बैटरी के अंदर सोलर एनर्जी जो है वहाँ पर स्टोर हो जाएगी, राइट। और इस बैटरी से हम लोग फिर क्या करेंगे, रात के टाइम में या फिर जब कभी भी हम लोग यूज़ करना चाहें उसे यूज़ कर सकते हैं। तो फ़ायदा इसी बात का है कि भाई दिन दिन में तो हम सोलर एनर्जी का यूज़ कर ही सकते हैं, पर रात में भी कर सकते हैं, बिकॉज हम जानते हैं कि रात में तो सूरज रहता नहीं। कैसे यूज़ करें, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर सोलर सेल पैनल्स को लेकर उसकी बैटरी को कनेक्ट करके पूरा सिस्टम क्रिएट किया। दैट्स हाउ इफ़ वी हैव दैट सिस्टम, तो हम दिन के साथ साथ रात में भी सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमने तो वो स्टोर कर ली, राइट। सो देखिए various solar cells in the solar cell panel are joined together by using connecting wires made of silver. Why silver? Silver से ही क्यों? Because silver is the best conductor of electricity. That is why we have used silver. क्योंकि हम इसकी efficiency बढ़ाना चाहते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे silver यूज़ हो रहा है और silver एक बहुत ही you can say costly element होता है, and that is the main thing कि ये जो solar panels हैं, ये जो solar cells हैं, ये काफ़ी ज़्यादा costly हो जाते हैं because of this silver only, ठीक है। पहला तो यहाँ पे बहुत ही you can say इम्पॉर्टेंट अगर हम बोलें तो एक स्पेशल टाइप का सिलिकॉन हमें चाहिए, एंड देन कम्स द सिल्वर मेटल, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिस इज बिकॉज सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैविंग वेरी लो रेजिस्टेंस। बेस्ट कंडक्टर है, काफ़ी कम रेजिस्टेंस है, दैट इज द मेन थिंग, ठीक है। द यूज ऑफ सिल्वर फॉर कनेक्टिंग सोलर सेल्स मेक्स द सोलर सेल पैनल मोर एक्सपेंसिव बट इट इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी। क्योंकि बेस्ट कंडक्टर है तो मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से कंडक्ट हो सकता है, राइट। सो यहाँ पे अगर हम बोलने की कोशिश करें तो हमें काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंसी मिल रही है, ठीक है। इस एफिशिएंसी के चक्कर में हमारे काफ़ी कॉस्टली एलिमेंट यूज़ हो रहा है, यानी कि सिल्वर यूज़ हो रहा है। सो इट इज़ सो मच एक्सपेंसिव, ठीक है। तो यहाँ देखिए दिस इज बिकॉज इफ connecting wires of other metals were used in solar cell panel, then a substantial part of the electricity generated by it could be lost in overcoming the resistance of such connecting wires. तो यहाँ पे मान लीजिए कि कॉपर यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है, लेट इट बी कॉपर यूज़ कर रहे हैं, तो आधी एनर्जी जितनी भी वो बना रहा है, सोलर सेल जितनी भी एनर्जी बना रहा है उसमें से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट तो कॉपर का जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है कॉपर, उसके में ही यूज़ हो जाएगा, उस रेजिस्टेंस में ही जो है वायर को हीट अप करने में चला जाएगा,
सो जितना हमने इलेक्ट्रिसिटी बनाया था उसमें से कुछ अमाउंट रेजिस्टेंस में निकल गया, तो वी आर गोइंग टू गेट मच लेस एनर्जी, एंड दैट इज द रीजन कि भाई एफिशिएंट नहीं होगा वो. So to increase the efficiency we use such type of, you can say, material. सिल्वर को हम basically use करते हैं because it is the best conductor of electricity. ठीक है, and that is why we are going to use this. ठीक है, now you are going to see the uses, right? तो बेसिकली उसके काफ़ी सारे यूजेस हैं, आप खुद से देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स और स्पेस प्रोब्स में हम यूज़ करते हैं, राइट. इंडिया में स्ट्रीट लाइटिंग, ट्रैफिक सिग्नल्स, वाटर पंप्स को ऑपरेट करने के लिए, इवन रेडियोज एंड टेलीविजन सेट्स जो कि रिमोट एरियाज में हैं उनको भी चलाने के लिए भी यूज़ सोलर एनर्जी. नेक्स्ट यू कैन से कि अगर हम लाइट हाउसेस जो कि सी के काफ़ी पास सिचुएटेड होते हैं वहाँ पर बता सकते हैं. ठीक है, सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ यू. अभी तो आजकल बहुत सारे टॉय सोलर सेल से बने होते हैं, कैलकुलेटर्स एंड ऑल, या काफ़ी जगहों पर हम सोलर सेल्स को यूज़ कर रहे हैं, सोलर एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स इट इज़ हैविंग सम मेरिट्स. ठीक है, तो मेरिट्स क्या है, यानी कि एडवांटेजेस क्या हैं. दे डायरेक्टली यूटिलाइज सोलर एनर्जी, तो हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, राइट. नेक्स्ट आप देखो, दे कैन वर्क सेटिस्फैक्टरली इवन इन डिफ्यूज रेडिएशंस. डिफ्यूज रेडिएशंस आई टोल्ड यू व्हाट इज दैट, राइट. तो डिफ्यूज रेडिएशंस होने के बावजूद भी वो सेटिस्फैक्टरली काफ़ी अमाउंट में हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं. दे नीड नो मेंटेनेंस. एक बार अगर आपने सोलर पैनल इंस्टॉल कर दी हैं तो उसके बाद आपको उसे मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, तो ये हमारे लिए फ़ायदे की बात है. एक बार लगा दिया एंड देन वी आर फ्री to use it, right. They do not cause pollution, that is the most important thing. वो कोई भी pollution जो है cause नहीं करते, सबसे बढ़िया बात है. ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए कुछ डीमेरिट्स, कुछ थोड़े बहुत डीमेरिट्स हैं, जैसे एनर्जी स्टोर्ड इन बैटरीज प्रोवाइड ओनली डायरेक्ट करंट. जो एनर्जी के मतलब आप बोल सकते हो जिस बैटरी के अंदर एनर्जी स्टोर होती है वो डायरेक्ट करंट जो है प्रोवाइड करती है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक सेल. ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल छोटा जो सेल होता है जो हम टॉयज में यूज करते हैं, रिमोट्स में यूज करते हैं, वो जैसा सेल प्रोवाइड कर रहा है डायरेक्ट करंट, सेम वैसे ही बैटरीज भी प्रोवाइड करती हैं. लेकिन हमारे घर में तो एसी आती है, ऑल्टरनेटिंग करंट आता है, राइट. सो अब हमें एक और डिवाइस चाहिए जो इस डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा. ठीक है, और वो जो डिवाइस है उसको हम यूज करते हैं. ठीक है ना, यहाँ पर मेनली उस डिवाइस का खर्चा और अलग से आ गया, राइट. दिस कन्वर्जन रिड्यूसेस एफिशिएंसी एंड इंक्रीजेस इट्स कॉस्ट. अब यहाँ पर थोड़ा सा इसका कॉस्ट और बढ़ गया और इसकी एफिशिएंसी कम हो गई क्योंकि उसके कन्वर्जन में भी कुछ एनर्जी चले जाएगी, राइट. दे आर वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज द सेमीकंडक्टर मटेरियल्स नीडेड फॉर द सोलर पैनल मस्ट बी वेरी प्योर. काफ़ी प्योर होने चाहिए. ठीक है, इसकी वजह से सिलिकॉन, स्पेशल टाइप ऑफ सिलिकॉन ही रिक्वायर्ड होता है, एंड वी यूज सिल्वर ऑल्सो. सो बेसिकली यहाँ पर फिर और ज़्यादा खर्चे होने की चांसेस हैं, एंड इट ऑलवेज इंक्रीजेज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द सोलर सेल, राइट. नेक्स्ट आप देखिए विंड एनर्जी. सो बेसिकली विंड एनर्जी जो है हम वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, और राइट आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू सी सम मोर एनर्जीज जो कि हमारे आसपास प्रोवाइड है, एंड वी यूज दोज. ठीक है, सो थैंक यू सो मच for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos. Thank you so much.